Okay, cool. So we are live. Hello everyone. I hope you guys can hear us, see us fine. I have Nida and Tuba with us today from Digital Superwomen, and we would like to have a conversation about the amazing work that they are doing. So, Assalamu alaikum, Tuba and Nida. How are you today? वालेकुम अस्सलाम फ़ायज़ा कैसी हैं आप और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस फॉर दिस कॉन्वर्सेशन निदा Malcolm Salam Faiza, I am well. And again, thank you so much for, being part of the conversation and also like obviously inviting us to your amazing community. Thank you so much, both of you. And I'm always happy to chat about the amazing work that women around us are doing for other women. Let's start with a little bit of introduction. Maybe you both can start with some background in terms of what were you doing before you came here, about your education, anything you would like to share. First. Of course. So I have been also running a community for most of my professional online career as far as that is concerned. Or I think soon after my degree pharmacy, I realized pharmacy is not my forte, and I've always been a big marketeer at heart, big marketeer enthusiast. So I did a lot of stuff, and आप समझ लें कि there's like one dot that connected with the other, and that brought us together. Tuba and I once met on a very random day on a very random pharmacy का क्या कहते हैं उसको department पे we met, and we had no idea that we'll come together, become such good friends, and do some business together. So that's like a very surprising fate thing over there. And as far as the professionalism or the career is concerned, prior to DSW, prior to Digital Superwomen, I was working full time for an online. I was working for an ed tech space called ICM Digital, which was a UK based ed tech platform. And for them, I was doing heading marketing and partnerships. Or abhi right now, then basically in November, I decided to quit my full-time job, and I then decided that it's time to do something of my own, time to test the waters, and finally get into a very entrepreneurial mindset, entrepreneurial mode. And the thing with me is that I always come up with these crazy ideas, and oftentimes it is Tuba that I am always like telling my crazy ideas कि Tuba बस अब हमने ये करना है, and Tuba always gets very excited along. So always that's a very good positive energy that comes from her side. So that's like from one founder to another, we found ourselves again paving the this very shaky boat of entrepreneurship. So yeah, I think I let Tuba tell her about what she was doing before. as Nida told everyone that we met on the pharmacy department of Karachi University and उस time नहीं मालूम था कि we came along this so long. So as of my introduction, so मैं पहले corporate में work करती थी, and I have a huge experience in e-commerce, and I joined Nida's group and I start my business, online business, और वहाँ से जो है ये सुपर वुमेन की जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन आई बिकेम द मॉडरेटर ऑफ द ग्रुप. और इस तरीके से ई कॉमर्स के साथ साथ आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग. Freelancing में when I step into the freelancing from the corporate job, so it was so tough at the initially, but जैसे explore करना शुरू किया, digital marketing को understand करना शुरू किया, मेटा एड्स को, और मेटा में जब कदम रखा तो the things were changed. तो ये एक्सपीरियंस था जो मेरा पर्सनली रहा. और आई एम अ फुल टाइम फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग कर रही थी इंटरनेशनली, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ वर्क किया, मेटा पे वर्क किया, मेटा एड्स पे वर्क किया, वेबसाइट पे वर्क किया. सो देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई हैव डन पर्सनली फ्रॉम द ऑल फेजेस ऑफ दिस डिजिटल नेटवर्किंग. एंड राइट नाउ फिर निदा का एक दिन फोन आया कि तूफा आई हैव अ आइडिया. निदा के पास जब भी कोई आइडिया आता है, निदा के वॉइस नोट होता है, ये मैसेज होता है, एंड सिमिलरली निदा के पास फिर एक आइडिया था, एंड दैट्स हाउ वी फाउंडेड डिजिटल सुपर वुमेन. तो हम डिजिटल सुपर वुमेन जब हमने
बनाया ना, जब हमने इसको फाउंड किया, इस टाइम एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट थी। पहले एनर्जीज थी, और इस दफा बहुत ज्यादा, जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते आते हैं ना, कहते हैं जितना टाइम आपको हो जाता है वक्त के साथ साथ, उतने अच्छे तरीके से फिर आपका इम्प्लीमेंट होता है आपका फाइनल प्रोजेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस हमेशा से थी, सक्सेस फेलियर्स और एक्सपीरियंस के साथ देन वी डिसाइडेड कि ठीक है, अब ये डिजिटल सुपर वुमन को फाउंड करना है और इस पे वर्क करना है, एंड हियर वी आर टुगेदर वर्किंग ऑन डिजिटल सुपर वुमन। Great, great. So you kind of answered the next question that I had about, how did you guys start behind starting a community? I understand that, going into what you are doing right now seems like a natural progression. Lekin, I want to know okay, what kind of made you start a community in the first place? And then I would love to know more about your take on skill building, especially when it comes to teaching women skills to get them employment opportunities. ज़रूर I'll take the lead on that one. So basically अगर आप सुपर वुमेन की बात कर रही हैं या so सुपर वुमेन का तो बनाने का मकसद back then was 2018 when I had I joined I basically started that group sitting randomly in an office where I was trying to work a 9 to 5 job, and उस वक्त मेरी बड़ी वाली बेटी was just 3 months old. And I realized that for us young mothers it's harder to prove a point, it's harder to uh, make make any kind of impact. I mean, not for yourself, but in a work setting for others, in a corporate environment, it's harder to no matter how many extra miles you want, no matter how much effort or how much work you're willing to put in, as far as us young mothers are concerned. उस office में बैठे हुए I just realized this is just very very difficult for me to work. घर से office जाना बेटी को लेके and वापस आना, and then office maybe there was like a lot of workforce discrimination that I was facing. And then I just realized कि यार I can't possibly be the only one who was going through something like this. ऐसे ही बैठे हुए मैंने Facebook group बनाया, and I just kept sharing my story, and I kept asking other women as well, whether this is something that is quite common. And turned out a lot of women felt something similar. So end of story would be that super women ended up becoming a space for women entrepreneurs, women artisans, women running small businesses, women who want to run a small business, potentially product or service oriented, and they would market. Would have a platform. If they're not working a full-time job, they would have that safe space where they can not only post about their business, but they can also ask the relevant questions कि business कैसे चलाते हैं, कैसे होता है, and everything. So this was like the foundation of everything that I do, right? And Superwomen was that foundation for digital Superwomen as well. Since a lot of time I've been noticing that there's a lot of desperation especially in Pakistan when it comes to employment opportunities, especially for women, because for women in general it's not as easy to step outside our homes to get even training, get even a little bit of experience. तो बहुत ज़्यादा domestic issues तो हैं ही, but उसके अलावा safety, security, there are so many concerns for women when it comes to the fact that they want to do something for themselves. तो जब last year I stumbled upon a lot of online jobs myself. I was doing freelancing, I was doing appointment setting, I was doing social media strategy for international clients, and then I would share some of my experience on my Instagram stories very a lot, and people started asking me कि ये क्या है, कैसे करती हैं और क्या करती हैं. And then basically then I became a bit more vocal about what I was doing and how I got those gigs or how I got those jobs. And I think that was like the founding that was that stepping stone where I realized that these skills are very core skills. A person could have any technical skill, but as long as they know how to present themselves and as long as they know how to market it well to the right audience, they can literally make money off of by sitting at home. बस आपको
बात करना आना चाहिए, प्रेजेंटेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और आपकी जो भी कोर स्किल्स, आई मीन यू हैव टू कंटिन्यू टू डेवलप योर सेल्फ, डेवलप योर स्किल्स, बट देर आर सर्टन हाई इनकम स्किल्स कि अगर खवातीन ने स्पेशली वो उन स्किल्स पे महारत हासिल कर ली, इफ दे मास्टर दो स्किल्स, then they can offer those services to other businesses or small businesses even, but that is something. So digital superwomen ka, that was the dream, where we want to in fact hit at least 50,000 women by that. It's a very, honestly, it's a very over ambitious goal, but goals are supposed to be over ambitious. So by 2030 हमारा गोल ये है कि हम 50,000 खवातीन taking that first step towards their financial freedom. So that was the goal behind Digital Superwomen, and यही था उसका कि upscaling के लिए अभी because physical classes देना और करना बहुत मुश्किल है, तो हमने decide किया कि हम Zoom पे अपनी online classes करेंगे, और recorded version भी अब हम बना रहे हैं as we're speaking, and yeah, so that is what we're doing right now. Right, right. Thank you for sharing. So, Tuba, question for you. So, how does your background in like marketing, social media informs your work as an entrepreneur? How does it help? ओके सो फाइजा, स्टार्ट स्टोरी यहीं से थी कि ये जो एंटरप्रेन्योर वाली चीज होती है ना, ये हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होती है, एंड इट टेक्स टाइम कि हम उसको जाने, हम देखें कि हम किस चीज में सबसे अच्छे स्किलफुल हैं। और ये यहाँ पे जितनी खवातीन मौजूद है, उनके हर, मैं कहती हूँ हर खातून के अंदर एक स्किल मौजूद है। उन्होंने सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि भाई मैं किस स्किल में अच्छी हूँ। अब निदा ने जैसे आपको बताया कि शी इज इन फार्मेसी, बट उसको भी एक्सप्लोर करते करते उसके अंदर था कि शी इज अ मार्केटर। ठीक है ना, उसने फार्मेसी सब, तो हम सबके अंदर ना कोई स्किल मौजूद है। तो व्हेन इट कम्स टू मी, तो आई हैव डन माय मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन आई जॉइंट फर्म। वो टोटली ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फर्म्स थी, तो मैंने एज अ मार्केटर, ई कॉमर्स मैनेजर वहाँ वर्क किया। उनके वेबसाइट्स को देखना, उनके सोशल्स को देखना, और वर्क एज अ वेंडर मैनेजर एज वेल, के किस तरीके से वेंडर्स को के थ्रू हम जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, किस तरीके से हमने प्रोडक्ट्स लेनी है, आगे डिलीवर करनी है, और उसका जो बीच में जो चैनल है हमारा डिजिटली वो। अब ये जो पूरा प्रोसेस था ना आपकी जॉब का, तो इसमें हम डिफरेंट चीजें सीखते हैं, कम्युनिकेशन होती है, हमें मार्केट का पता चलता है कि अच्छा मार्केट में इस तरीके से काम हो रहा है, या बिजनेसेस इस तरीके से चलते हैं। उस वो चीजें सीखते सीखते, और खुद जब फेसबुक एकदम से ग्रो हो रहा था, और फेसबुक पे हम देख रहे थे कि भाई अब हर कोई बिजनेस डिजिटली आ रहा है। अगर मैं कुछ साल आज से कोई 15 साल पहले की बात करूं, तो शायद इतनी डिजिटली हर प्लेटफॉर्म पे हर वेबसाइट या हर वो बंदा जो कि अपनी शॉप लेके बैठा हुआ था, वो नहीं था ऑनलाइन। जब ये चेंज आ रहा था ना, आई स्टार्टेड वन ऑफ माई बिजनेस, जिस जो अभी पॉज पर है, आई स्टार्टेड, और मैं बता रही हूँ कि मैंने ऑर्गेनिकली आई अर्न अ लॉट विद दैट वन सिंगल बिजनेस। सिर्फ आपके अंदर पोटेंशियल, और आप उस, और वो मेरा लर्निंग फेज था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना। असल मेरा लर्निंग फेज वो था जिसमें मुझे पता चला कि यार मैं किस तरीके से मुझे मैनेज करना है। और ये बात शायद लोगों को यकीन ना आए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं कभी लॉस में नहीं गई। मतलब मैं खुद भी बहुत अमेज्ड हुई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आई नेवर फेस अ लॉस इन माय बिजनेस। कि एक होता है ना कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारा लॉस हो गया, इट्स अ थिंग, बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट होता है। वो एक बहुत लर्निंग फेस था, किस तरीके से अपने आप को मार्केट करना है, किस तरीके से फेसबुक सीखना है, मेटा एड सीखना है। जो मैंने सबसे ज्यादा इसमें लर्निंग किया ना, वो मैंने लर्न किया है टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, कि मेटा किस तरीके से वर्क करता है, फेसबुक किस तरीके से वर्क कर रहा है, इंस्टाग्राम किस तरीके से, और आप अपने बिजनेस की एक अच्छी स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें लर्न करने के साथ, डिफरेंट एक्सपर्ट के साथ, कि सिर्फ फेसबुक नहीं, वेबसाइट को किस तरीके से आपने सेटअप करना है, आपके बिजनेस का वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे आपने अपने आप को ग्रो करना है। सो दैट्स हाउ आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसी तरीके से मेरी पूरी एंटरप्रेन्योर जर्नी चल रही थी। आफ्टर मैरिज ये हुआ कि आई स्टॉप माई कॉर्पोरेट जॉब, बट आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क। Then I step into the freelancing field, और believe me कि मैं freelancing field में enter होने के बाद, and when I just started earning, so I thought कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया था। मैंने ये पहले क्यों नहीं किया था। तो ये चीजें होती हैं। वो एक वर्ड होता है ना, कॉर्पोरेट स्लेव, आपने सुना होगा, बहुत उस पे वीडियोस बनती है, बट ऑनेस्टली when you are into an entrepreneurship और आपके पास वो स्किल होते हैं, so just use those skills for yourself। मैंने भी उन्हीं स्किल्स को जब अपने लिए यूज करने
करने लगी और अपने उसको एक्सप्लोर किया अपनी ही फील्ड में रह के। सो आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज हाउ दिस एंटरप्रेन्योर जर्नी, और दैट इज हाउ जो मैंने और निदा ने अब सीखा है इतने सालों के एक्सपीरियंस से, दैट वी वांटेड टू गिव इट टू द कम्युनिटी बैक। तो ये हमारा मेन गोल है कि भाई जो हमारे पास स्किल्स हैं वो कम्युनिटी को पे बैक करना है हम। Hmm. On the topic of skills, क्या trainings, क्या skills हैं जो digital super के platform से people can learn? Right now we started off with two courses. पहला कोर्स था हमारा, कोर्स है हमारा इनफैक्ट अपॉइंटमेंट सेटिंग, एंड दूसरा कोर्स है हमारा मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो। अपॉइंटमेंट सेटिंग का कोर्स मैं कंडक्ट करती हूँ लाइव ऑनलाइन, एंड तूबा कंडक्ट्स द मेटा कोर्स। और विद टाइम हमारा प्लान है कि हम बाकी कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। राइट नाउ जो मेरा और तूबा का अपना पर्सनल स्किल सेट है, it revolves around marketing, soft skills as well as hard skills, जो कि आपका ये ads वगैरह और थोड़ी technical चीज़ें जो आ जाती हैं। तो with time we are planning to introduce more courses such as social media marketing, क्या होती है, कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपना इसमें अपना business या career सा start कर सकते हैं। At the same time, there's a lot of demand for learning business English as well, marketing related English के आपको बेसिक आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपकी कैसी होती है, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ कोर्सेज दैट हमें काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं कि आप इनके ऊपर भी काम करें। बट फिलहाल के लिए वी आर वर्किंग ऑन, वी इंट्रोड्यूस अपॉइंटमेंट सेटिंग विच इज़ अ कस्टमर सर्विस सेंट्रिक एरिया, जो कि बहुत लुक्रेटिव है, बहुत इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी लोगों के लिए। दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड माई ऑनलाइन करियर एज वेल। आई स्टार्टेड ऑफ एज एन अपॉइंटमेंट सेटर back in 2023, and that opened a lot of doors for me. और मेटा एड्स बिकॉज अब कोई भी बिजनेस ओनर हो या बिजनेस ओनर ना भी हो, तो दिस इज़ अ स्किल जो कि काम आती ही है। सो दीज टू कोर्सेज, बाकी कोर्सेज हमारे ऑल प्लान्ड है इंशाल्लाह, तो वो हम उनको आगे के 1-2 महीनों में इनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। Right. अभी हम you started the conversation about and you mentioned that women getting access to skill building and work opportunities, and how can they expect support from your platform? आपकी ना आवाज़ काफ़ी कट गई थी, तो सवाल मुझे नहीं। So we have some internet issues here. That's why I'm keeping my video closed. जी। I was asking that क्या barriers नजर आते हैं आपको when it comes to women accessing skill building and work opportunities, and what are you guys doing to support people who are part of your platform to hop through those barriers? The number one challenge that is currently on the horizon for not just women but freelancers in general in Pakistan is कि जब भी आप किसी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, a lot of my students told me, but we've also like seen it and experienced it ourselves, that whenever you mention that you are from Pakistan, that immediately becomes a red flag. So just this very thing, that on a very that very first step it discourages people from applying, that is a very very big issue. तो ये सिर्फ ना लड़कियों के साथ हो रहा है, but freelancers from whatever area they are from Pakistan, so फिर उसकी वजह से फिर लोग VPN और then location change करने के मसाइल, and there's like whole different, this is a whole different topic with a lot of complications. But we can do what we can do, obviously जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं अपनी students के लिए. So far we have collaborated, or आप कह लें कि we've done a strategic partnership with two software houses within Pakistan, who these software houses are actually also working for international clients. One of it is actually working for local and international clients, and one strictly works for international clients. तो हमने उनके साथ इस तरह की पार्टनरशिप की, और इनफैक्ट वी आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर सच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स वेयर a lot of software houses, a lot of call centers, a lot of BPO centers, they're always on the lookout of for student for like candidates who have good communication skills and good at least like उनको basic उनको पता हो how to converse, how to speak, और जो भी इनकी social media की skills है basic at least उनको पता हो अच्छा खासा। और जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं, like जो students आते हैं,
they're quite माशाल्लाह से well versed already, like then some of them होते हैं बिल्कुल zero background वाले जो होते हैं, लेकिन फिर भी by the time the course is finished they have good grasp on the topic. एंड अभी हमारा यही गोल है कि हम खुद तो रेफर करते ही हैं स्टूडेंट्स को, और बिकॉज ऑफ माई ओन कम्युनिटी तो अ लॉट ऑफ बिजनेसेस एंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन वेरी गुड प्लेसेस ऑलवेज रीच आउट टू मी कि निदा वी आर लुकिंग फॉर दिस XYZ रिसोर्सेज। तो हमें जो भी कहीं से भी मैसेज आता है, कोई भी ढूंढ रहा होता है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उनको उनको रेफर करने की ट्राई करते हैं। इनफैक्ट राइट नाउ एज वी स्पीकिंग, वन ऑफ आवर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन has hired about 10 students from our collective batches, जिसमें a lot of girls applied and जो सबसे 10 best थे उनको select किया था, and now they're like working full time for this for this like it's also a startup, वो digital media पूरा startup है, so they hired 10 of our girls, so this is like a very good thing for us. एंड इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हम खुद भी ढूंढते रहते हैं कि हमें कोई इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ले ले, where we could together train our students, if like हम तो अपने end से जो train कर रहे हैं वो कर रहे हैं, but obviously हर organization, हर startup उसका सारी जो उसकी requirement होती है वो different होती है, तो we do keep that option open कि we would be part of the orientation or we would be part of the training process. So these are some of the services that we are also offering, not just to students alone but also to the businesses. So B2B model भी है हमारा कि हम अगर उनको हम हमारे वो स्टूडेंट्स हायर कर रहे हैं, सो वी ट्राई टू मेक इट अ वेरी गुड इजी ट्रांजिशन फॉर आवर स्टूडेंट्स. Right. This sounds great. Because a lot of times यही होता है कि they get into programs, skills सीख लेते हैं, but they don't know the next step. So certificates जमा होते रहते हैं, लेकिन ये कि work experience जो है वो easily available नहीं होता. So if you are connecting them with employment opportunities, I think that is amazing. मुझे ये बताइए कि do you think that हमारे यहाँ अभी ऑर्गेनाइजेशंस की उस तरह से सपोर्ट अवेलेबल नहीं है to hire women who want to get back to their careers, or women who are starting their careers but who cannot go to the office? So do you find easy to find partners, or is it like an uphill battle in terms of organizations not being open to this idea? I mean, it's obviously it's a battle all around, I think. लेकिन अभी I'll be a little frank, हमें start हुए हुए इतना time हुआ है नहीं. We launched on November 15, मतलब 15 नवंबर को हमने अपना first batch की announcement की थी. एंड मतलब बेसिकली सेकेंड कोहोर्ट जो था हमारा पेड कोहोर्ट था, तो ऑल इन ऑल टुगेदर हमारे पास 185 स्टूडेंट्स हो चुके हैं अब तक के, लाइक हु वी ट्रेन्ड ऑनलाइन. एंड it was quite surprising to actually find 3 potential partner organizations in a very short span. ये भी किसी Facebook centric community के थ्रू ही हुआ था कि where somebody saw my post and they asked me, like I did not even like say कि we are looking for partners, but मेरा पोस्ट कुछ इस तरह का था that sparked a lot of curiosity in a lot of people's mind, तो उन्होंने मुझे reach out करके कहा कि do you have more resources, we would like to hire them, or we are looking for X resources. And I mean, this is like an everyday thing काफी लोग मुझे reach out करके पूछ रहे होते हैं. So I will just say this one thing कि when it comes to us going about looking for such partner organizations, it I would say it's a 50-50. It's not entirely very difficult, क्योंकि अब काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स बन रहे हैं या घरों से ऑपरेट कर रहे हैं जो कि अब इंटरनेशनल मार्केट को केटर कर रहे हैं. एंड कस्टमर सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऐसी बेसिक चीज़ें के बगैर तो कोई भी बिजनेस सर्वाइव कर ही नहीं सकता. सो दिस इज़ व्हाट वी बिलीव इन. सो इट्स नॉट लाइक के भले से ऑफ कोर्स अवेयरनेस की कमी है, लॉट ऑफ बिजनेसेस डोंट इवन नो व्हाट अपॉइंटमेंट सेटिंग इज या अपॉइंटमेंट सेटर क्या करता है. तो जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं ना, तो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि ओ दिस इज द काइंड ऑफ रिसोर्स वी वुड नीड, और दिस इज द काइंड ऑफ रिसोर्स या तो भाई, यू वांट टू ऐड समथिंग? मैं यहाँ पे यही ऐड करना चाह रही थी कि जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है ना, अगर मैं टाइम चेंज की बात करूँ तो पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि घर से बैठ के भी कोई प्रोडक्टिव वर्क कर लेता है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे इस चीज को, सही है. लेकिन अब क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, अगर प्रीवियसली भी बात करूँ, सब कहते हैं कि ओके वी सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम सब, लेकिन अब क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, चेंजेस आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्तों में सब इस चीज को सपोर्ट ही करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर उनका काम कंप्लीट हो रहा है और वर्क फ्रॉम होम हो रहा है,
तो उनके लिए प्रोडक्टिविटी मैटर करनी चाहिए, और इस तरीके से जो हमारी वुमेन फोर्स है उसको भी एक मौका मिलेगा कि वो कंट्रीब्यूट कर सके। हम खवातीन के साथ यही सबसे बड़ा इशू होता है, विच आई फेसेस बाय माई सेल्फ एज वेल, कि जब हम अपने घर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी होते हैं तो एक फोकस होके एक जॉब पे जाना और कंप्लीटली तौर पे हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता है। एवरीवन डोंट हैव अ हाउस, हर किसी के पास वो रिसोर्सेस मौजूद नहीं होती। तो जिसके पास नहीं है, अगर आप घर से बैठ के काम करना शुरू करते हैं, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर अब ऑर्गेनाइजेशन ही ऑफर कर रही हैं। अब मैं देखती हूँ कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे नीड सोशल मीडिया मैनेजर, वर्क फ्रॉम होम हो, रिमोट जॉब हो, या फिर हाइब्रिड जॉब हो, कि भाई हफ्ते में आप एक दफा आए या दो दफा आए। तो द वर्ल्ड इज चेंजिंग, एथिक्स भी चेंज हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के खवातीन के लिए बहुत ऐसे मौके आएंगे कि वो घर से बैठ के बहुत बेहतर तौर पे काम कर सकेंगे। हम्म राइट, राइट। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक जो कोर टेक, द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट आई वर्क इन, उसके अंदर अब वो बैक टू ऑफिस वाली चीजें हैं, लेकिन फॉर स्मॉलर बिजनेसेस, for the kind of roles that you are training women on, still there is a lot of potential for finding remote work. Absolutely. हम्म So let's talk a little bit about your vision. आपने कुछ शेयर भी किया, 50,000 women you want to train. क्या हम्म milestones हैं for the next 1 year, 3 years, 5 years? What are you looking for in the future? सो अभी तो हमारा यही गोल है फायजा, कि वी वांट गो एट दिस पेस ऑफ कोर्स, कि हम मैक्सिमम या जितनी भी खवातीन को हम टच बेस कर सकते हैं ऑर्गेनिकली स्पीकिंग, वी डोंट डू मेनी मच पेड मार्केटिंग। हम अपनी कम्युनिटी के थ्रू ज़्यादातर, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू अस ईदर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और थ्रू आवर कम्युनिटी अलोन, या जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करता है वहाँ से हमें हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं। और विजन अभी यही है, इंशाल्लाह इस साल तो हम कोशिश करें कि एटलीस्ट 2500 स्टूडेंट्स तक करें। टारगेट ये हमारा है इस साल का, which is a rather small target as far as the our somewhat हम मतलब थोड़ा सा हमें लगता है कि ये थोड़ा एक प्रैक्टिकल है। अगर हमने बिल्कुल प्रॉपरली इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी तो असल में द थिंग इज कि वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ व्हाट वी डू। द इम्पैक्ट इज इम्पॉर्टेंट, द क्वालिटी इज वेरी वेरी, मतलब द क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर द इम्पैक्ट वुड बिल्ड। इसीलिए हमारे जो कोहोर्ट्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट वी enroll is 40 to 50 women for probably for the for each class, each course, which is 50, like 40 50 for appointment setting and 40 50 for meta ads. And once things are more streamlined for us, obviously हम भी एक स्टार्टअप ही हैं, तो हमारा भी नेक्स्ट स्टेप यही है। दिस ईयर हमारा गोल है कि हम अपने कोर्सेज को रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में भी उसको अवेलेबल करें अपनी वेबसाइट। हमारी वेबसाइट बिल्कुल 100% रेडी है, और कब से ही रेडी है माशाल्लाह से, लेकिन वो अभी तक लाइव नहीं हुई है बिकॉज ऑफ सम कॉन्स्ट्रेंट्स। हम थोड़ा अपने पेड कोर्स, सॉरी, अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज के ऊपर काम करें। तो फिलहाल इस साल हमारा गोल यही है कि हम फुल फ्लेज्ड लाइव होके अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी मार्केट करें, एंड एज मच एज पॉसिबल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी, क्योंकि ट्रेनिंग तो हम कर ही रहे हैं, but at the same time opportunities भी available करना is very important to us. And the other bit is other thing that we are also planning to start inshallah very soon is some physical master classes as well within Karachi, of course, right now, कि a lot of girls do prefer कि हम physically भी इस तरह की कुछ activities attend करें, तो हम physical master classes भी हमारा plan है इस साल introduce करने का. In the next 3 years, I vision DSW to have an LMS of its own, and like a learning management software, पूरा completely पूरा system हो वो, so that it's accessible for women. Not everybody has to turn on Zoom या जो भी है, whatever, like एक पूरा एक all in one platform हो. That's like what I'm looking for, looking to achieve in the next 3 years. And by next 5 years देखते हैं क्या होता है. Hopefully सब globalize, कुछ अच्छा ही होगा 5 सालों hopefully, yeah, में। inshallah, and hopefully, like, take it to other countries, at least start off with GCC. But that's just me being a little too over ambitious, so
have to keep our feet grounded and work accordingly. No, I agree with Tuba. जो भी होगा अच्छा ही होगा. Absolutely. Um, and it's important to have like a big audacious goal because that keeps us moving. Yeah, absolutely. So it's also really important. Uh, Nida had this idea. She came to you. You joined in. You became a co-founder. So how do you maintain like a shared vision Uh, while also allowing the room for फाइजा आपकी आवाज कट रही है. वी आर अनेबल टू हियर द कंप्लीट क्वेश्चन. हाँ जी जी मैं आपसे ये पूछ रही थी कि as you mentioned that Nida reached out to you and you हम्म. joined in as a co-founder and you believed in the vision. So मुझे बताएं कि शेयर तो आपने एक मेंटेन किया है बट हाउ डू यू other individuals work on Could not. फायजा, हम दोनों का विजन, मुझे जो बात समझ में आई है मैं वो उसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ आपको. देखिए, मैं और निदा ना, निदा मेरे पास है. इससे पहले हम काफी अरसे से दोस्त रहे हैं, ठीक है. और एक जो ट्रस्ट बिल्ड हो जाने वाली चीज होती है ना, वो हमारे दरमियान है, ठीक है. हाउ यू मेंटेन अ शेयर्ड विजन while allowing room for individual ideas and growth. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे फायजा है ना, वो अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों की, ठीक है. जब निदा ने इससे पहले भी एक स्टार्टअप लिया था, ठीक है. निदा वाज द फाउंडर एंड आई वाज वर्किंग अंडर हर. मैं उसका को फाउंडर नहीं थी. जब निदा ने ये स्टार्ट किया ना, निदा से टू मी के तुबा, ये मैं तुम्हारे साथ ही कर सकती हूँ और मैं किसी के साथ नहीं कर सकती. और अगर तुम्हारे साथ नहीं करूंगी तो फिर मैं अकेले करूंगी, मैं किसी और के साथ नहीं कर सकती. तो निदा का ट्रस्ट, उसके बाद वो जो बॉन्डिंग होती है ना, कि भाई सामने वाला अगर मुझे अपनी बात समझा रहा है तो मैं उसकी बात समझ रही हूँ, या मुझे पता है हम दोनों की नेचर का मैच करना, या हम दोनों के आइडियाज को मैच करना. या ऐसा नहीं होता कि हर चीज बड़ी स्मूथ चल रही होती है, ठीक है. कभी भी स्टार्टअप्स में या किसी भी बिजनेस के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती है. अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी एनर्जीज बहुत हाई हुई होती हैं, कभी एनर्जीज बहुत लो हुई होती है. बट इंडिविजुअली हमारे जो आइडियाज होते हैं वो हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं, एंड देन वी पुट टुगेदर. वो जो दो आइडियाज दो लोगों के पास है, उनको एक जगह पे एक सेम पेज पे लेके आते हैं, एंड देन वी डिसाइडेड कि अब इसको आगे किस तरीके से ग्रो करना है, ठीक है. कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि निदा मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखे. निदा इज द फ्रंट ऑफ डीएसडब्ल्यू, मैं टेक्निकल में हूँ, तो ये हम दोनों के दो पार्ट्स हैं. अगर निदा मार्केटिंग देखती है, सो आई एम मोर इनटू द टेक्निकल साइड्स, कि भाई एड्स कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, या फिर वेबसाइट किस तरीके की होनी चाहिए. तो जब दो लोग दो डिफरेंट नेचर के होते हैं तो दे कैन मेकअप. और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको एक दूसरे को समझना पड़ता है और आपको एक दूसरे को थोड़ी स्पेस भी देनी पड़ती है काम करने में. हमने एक दूसरे को स्पेस भी प्रोवाइड किया कि अच्छा अगर तुम बिजी हो तो इट्स ओके, चलो होता है. तो आपका माइंडसेट होना, आपकी अंडरस्टैंडिंग होना, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है ये वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है. उससे पहले पता नहीं लोग सीख पाते हैं नहीं, लेकिन मुझे तो हमेशा यही रियलाइज हुआ है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, आई फील माई सेल्फ ग्रो. मैं मेंटली और थॉट प्रोसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेहतर होती जा रही हूँ. तो दैट इज हाउ वी आर वर्किंग. और मुझे नहीं लगता हमारा कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है. कभी अभी तक तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, और इंशाल्लाह होगा भी नहीं. right. Nida, what about you? What do you think about this? Let me reread your question one more time. अच्छा, so हाँ बिल्कुल. I think shared vision को और उसकी the excitement that comes along when you have a vision that is incredibly big. It's hard to keep that same energy level. Definitely, every day comes with different sets of challenges. Plus,
both of us are young moms and both of us have very young kids. So घर से फिर काम करना, I think it's a very in this modern age, आजकल की challenges बिल्कुल different हैं. But as far as the vision is concerned, it's something that always keeps us on top of our minds and on top of our feet. हमारा जो हमेशा से यही conversation होती है कि हमें जो है ना, इस ये जो एक थॉट प्रोसेस है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ख़वातीन को हम एटलीस्ट इतना केपेबल कर दें कि अगर उनको कोई जॉब नहीं भी मिलती तो वो खुद अपने पाँव पे खड़ी हो सकें. दैट इज़ लाइक द हार्ट ऑफ what we do at Super Women and at DSW, because the conversation has always been centering around the fact that women can and women should. एंड इन इस बात की वजह से यही होता है कि हम अब बीइंग स्किल्ड ourselves, जो भी अभी करंटली हमारा स्किल सेट है, हाउ कैन वी enable a woman who probably studied, maybe she did masters in English, maybe she did a bachelor's in education, but when she had kids she kind of lost her own identity and she kind of lost herself and lost that sense of, having a goal for herself and everything. So we know what it's like, and we've been that, and we've been in those shoes ourselves. And it's not a pretty feeling. It's not something that I would want to go back to. And I'm sure Tuba doesn't want to go back to. And probably a lot of mothers who are listening to this don't want to go back to that feeling. Every one of us wants to have that sense of, identity, not an identity crisis. तो शेयर्ड विजन हम दोनों का इसी चीज़ को हमसे सबसे सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ को हम इस पे बॉन्डेड रहते हैं कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि घर के साथ फैमिली के साथ इसको लेके चलना आगे मुश्किल है बिल्कुल. बट वेयर वी वांट टू गो इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन गिव अप ऑन वेरी इजीली. And I have said this many times and I like saying it over and over again. Our story is not unique at all. In fact, it's the story that has all of us standing together, all of us being able to relate with each other. And that is why a story is a beautiful story, because all of us can relate with that. And शेयर्ड विजन हमारा हमेशा से यही रहा है कि हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना है, भले से एंड ऑफ कोर्स लाइक देख कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे तूबा अग्री नहीं करती है, कभी मैं अग्री नहीं करती. But it's so important to respect each other's opinion as well as our difference of opinions. This is very important. And I think ये हम काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से करते हैं, मैं और तूबा. गुस्सा आता है बिल्कुल कभी कभी और समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से हैंडल करना चाहिए, लेकिन कर लेते हैं. अल्लाह का शुक्र है, वी हैव pretty mature when it comes to such situations. And it's also important that we get the backstory. So if Tuba says something that I don't get in that time frame or in that mindset, जिस mindset से मैं तुबा से बात करी हूँ, and she just says something that मेरा दिमाग उधर गया ही नहीं है या मैंने सोचा ही नहीं है, तो I do take a step back and take that, listen to her back story and कि अच्छा ये बात है, इस तरह से है, इस वजह से है. So इसी तरह से same goes with Tuba. If she has ever any questions or concerns, so I do take the time, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत important है कि Tuba and I are on the same page every single day. हाँ, हमारे विजन्स और हमारे एम्बिशंस ज़रूर चेंज हो सकते हैं और हम ज़रूर इसको सोच सकते हैं कि हमें और अच्छे से आगे करना. जैसे हम 50,000 खवातीन का सोच रहे हैं, मे बी तूबा थिंक्स कि हमें मे बी 2 लाख खवातीन को हमें टच एम्पावर करना चाहिए. बट दैट्स समथिंग दैट वी कैन टुगेदर वर्क ऑन. बट हाँ, छोटी छोटी चीज़ें एज फार एज द स्ट्रैटेजी इज कंसर्न या एवरीडे ऑपरेशंस इज कंसर्न, इट डज गेट अ बिट चैलेंजिंग because most of the front end things I do myself, and a lot of technical things and back end things Tuba takes care of. But it's fine because this is how we have decided that these are our roles and इस तरह की हमारी responsibilities हैं, तो we are pretty clear on what Tuba has to do and what I have to do, and इसी तरह से फिर हम इसको लेके चलते हैं as a team. Right, right. Thank you for sharing. Um, so I want you both to um, pitch the audience the next cohort of your program. So maybe Tuba can talk about the course that she's running, and then Nida, you can talk about the course you're running, and feel free to give them all the details that you want to give. Because I'm seeing that I'm getting inbox messages about details on the course. I would love for you guys to kind of
go through what you're teaching. So maybe Tuba, you can start. ओके सो राइट नाउ अभी जितने हमारे कोहॉर्ट हो गए हैं तो उसमें हम अपने 2 कोर्सेज प्रोवाइड करें. द फर्स्ट वन इज द अपॉइंटमेंट सेटिंग एंड द सेकंड वन इज द मेटा एड्स मेटा बिजनेस सुइट. मैं अपॉइंटमेंट सेटिंग जो है वो निदा करवाती है, मेटा बिजनेस सुइट मैं करवाती हूँ. बट इन आवर नेक्स्ट कोहॉर्ट वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग सम मोर कोर्सेज, सम न्यू कोर्सेज, राइट. इंफॉर्मेशन आपको हमारे डिजिटल सुपर वुमन के पेज पे होगी. मेटा बिजनेस सुइट का मैं बताती हूँ. देखिए बहुत सी खवातीन हैं जो कि बिजनेस रन कर रही हैं बट वो स्टक हो जाती हैं कि फेसबुक के बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं, फेसबुक की बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसको आप यूज करके अपने बिजनेस को बहुत इजी बना सकते हैं. ठीक है. होता यह है कि वो बिजनेस रन तो कर रही है बट उनको वो टेक्निकल चीजें नहीं पता, उनको वो टेक्निकल टूल्स नहीं पता फेसबुक के जिसके थ्रू वो बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकती हैं. एक तो उन खवातीन के लिए ये कोर्स. सेकेंडली वो लोग जो अपनी सर्विसेज एज अ सोशल मीडिया मैनेजर देना चाहते हैं और वो टेक्निकल स्किल्स सीखना चाहते हैं कि भाई मेटा बिजनेस सुइट के अंदर हम एड्स कैसे रन करेंगे और एक सक्सेसफुल एड्स बनता किस तरीके से. या अगर एक एड हमें कैरोसेल एड दिख रहा है और एक वीडियो एड दिख रहा है तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अपने क्लाइंट के या किसी भी बिजनेस को रखते हुए हमें कैसा एड रन करना चाहिए, किस तरीके का होता है, ये जो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है ये हम अपने कोर्स में आपको सिखाते हैं. हम सिखाते हैं सबसे पहले तो आपको इंटरफेस पूरा कि मेटा बिजनेस सुइट का इंटरफेस है क्या. जब आप फाउंडेशन को अच्छे से समझ पाते हैं ना देन हम आपको फाउंडेशन समझाते हुए वो इकोसिस्टम समझाते हुए आपको लेके जाते हैं अपने एड्स की तरफ. ऐसे नहीं है कि आपने कोर्स ज्वाइन किया तो आप अगले दिन से एड्स रन करना शुरू हो जाएंगे. ये कभी भी ऐसा नहीं होता है. आपको पहले सिस्टम समझना पड़ता है पूरा. तो मेटा बिजनेस सुइट के अंदर आपको वो पूरा सिस्टम समझाते हुए फिर हम आपको एड्स की तरफ लेके जाते हैं. मैं आपको अपनी एक स्टूडेंट का किस्सा बताती हूँ. वो काफी अर्से से अपना एक बिजनेस रन कर रही थी एंड शी रन द एड्स. तो उन्होंने ज्वाइन किया तो मैंने पूछा जब कि आप में से किसी ने पहले एड रन किया है. शी सेड कि हाँ मैंने एड रन किया है लेकिन मैंने कोर्स इसलिए ज्वाइन किया कि मेरे एड्स पे रिजल्ट्स नहीं जनरेट हो रहे. तो मुझे भी हैरानी हुई कि अच्छा इनको एड रन करने आते हैं फिर. एंड आई गिव हर सम टिप्स जो हमारे कोर्सेज में हम अपने हैक्स और टिप्स शेयर करते हैं कि भाई ये एक प्रॉपर तरीका है एड रन करने का. ठीक है. उसके 3 दिन बाद, एक हफ्ते बाद उसने एड रन किया एंड शी कॉन्टेक्टेड मी कि तूपा जो आपने तरीका बताया था मैं सिर्फ उस तरीके से मेरा जो है वो गेम ही चेंज हो गया. सो दीज थिंग्स ना मोटिवेट मी कि अच्छा हम कुछ चेंज लेके आ रहे हैं. तो मेटा बिजनेस सुइट का और मेटा बिजनेस एड्स का कोर्स वो सारी खवातीन मैं कहूंगी लें. भले आपको खुद अपना बिजनेस मैनेज करना है नहीं करना है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपका बिजनेस कैसे मैनेज होगा या एड्स कैसे रन होंगे. और एल्गोरिथम चेंज होता है हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फेसबुक के एल्गोरिथम चेंज होते हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं और अपने आप को उस हिसाब से अपडेट कैसे रखना है. कौन सी पॉलिसीज होती हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं जो आपने अपने एड्स में यूज नहीं करने, जिसकी वजह से आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी कैंपेन अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकती. So this is all things we tell them in our class in Meta Business Suite class. तो वो लोग जो कि खवातीन हैं, बिजनेस ओनर्स हैं या सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, टेक्निकल स्किल्स सीखना चाहते हैं उनके लिए कोर्सेज है. निदा. So basically, Thank you, yeah, Tuba. Can you guys also talk a little bit about when's the next cohort starting? यस यस इंशाल्लाह अभी हम्म, जो है ना हमारा एक क्या नाम है, संडे को एक पहलिया में हमारा इवेंट है. हमारा एक नेटवर्किंग इवेंट हम कर रहे हैं यहाँ पे लेडीज़ के लिए. तो हम इसमें थोड़ा सा वेयर अ बिट कॉट अप ओवर हियर. एंड ऑफ जनवरी हम इंशाल्लाह बाय 29th और 30th जनवरी हम अपना अनाउंस कर देंगे कि आवर नेक्स्ट कोहोर्ट इज़ लाइव. वी हैव अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, अ लॉट ऑफ पीपल आर इन आवर वेट लिस्ट ऑलरेडी. और इंशाल्लाह लाइक तूबा सेड कि वी आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूसिंग अ वेरी वेरी गुड कोर्स जो जिसकी डिटेल हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे. और इसके अलावा लाइक इन 2 कोर्सेज के अलावा एक हम तीसरा कोर्स भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने नेक्स्ट कोहोर्ट में. And as far as the pitch goes, so Digital Super Women is a platform which is for 2 type of women. One is the audience, one is the type of women who want to learn freelancing skills. या तो वो कोई ऐसी स्किल सीखना चाहती हैं जिसके बेसिस पे वो कोई जॉब तलाश कर लेंगी या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगी. और दूसरी तरह की खवातीन वो हैं जिनको हम टारगेट करते हैं हु आर बिजनेस ओनर्स और आर इन प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस, जो कि अपने बिजनेस और मार्केटिंग स्किल्स को बेहतर करना चाहती हैं. तो इन 2 मेन एरियाज के हिसाब से हमारे जो जो कोर्स हम डिज़ाइन करते हैं वो इन 2 मेन चंक्स को मद्देनजर रखते हुए करते हैं.
So Tuba, the course that Tuba does, which is Meta Ads, is for usually for women who are currently business owners or in product or service oriented business and want to better their ads or like समझना चाहती हैं कि कैसे चलाते हैं and everything, the science behind Facebook ads, and also for women who want to start Meta Ads as a service for other businesses. And the course that I conduct, which is appointment setting, is for women who want to understand how with zero experience they can become an appointment setter, which is a customer service, which is like a customer service agent आप समझ लें, but it's not your typical calling agent. Appointment setting में दो types की basically opportunities होती हैं for people who can become DM setters or call setters. फॉर एनी बडी हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग आउट हम उनको डीएम सेटिंग रेफर करते हैं और हम पूरे प्रोसेस में अपने क्लास के ये सिखाते हैं कि क्या होती है, कौन सा से बिजनेसेस जो आप अपॉइंटमेंट सेटर ढूंढ रहे होते हैं, क्या आपको करना होता है, एंड हाउ कैन यू फाइंड द जॉब्स, ऑन व्हाट ग्रुप्स, ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म्स डू यू गो टू इन ऑर्डर टू लैंड दोज अपॉर्चुनिटीज. एंड अपॉइंटमेंट सेटिंग अगर किसी को समझ नहीं आती है तो मैं ये बता सकती हूँ कि अपॉइंटमेंट सेटिंग इज अ प्रोसेस बिफोर सेल्स. So all an appointment setter mostly does is initiate a conversation with a prospective client, introduces to him the services or the business, and tries to pitch him. And his main goal is to book a meeting between the business that he is working with. यानी for example अगर मैं एक marketing agency चलाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि women owned businesses के साथ काम करूँ जो कि clothing business की line में है, and Tuba is for example my appointment setter. So I will ask Tuba कि Tuba ये मेरी service है, why don't you try to find me some clients who might be interested in getting digital marketing services from me. So Tuba as an appointment setter will go hunt down some potential clients and उनकी मेरे साथ meeting book करा देगी. So that is what essentially an appointment setter does, and इसमें काफ़ी सारी variations हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम पूरे throughout the course अपने सिखाते हैं. Along with scripts हम उनको देते हैं कि आपने when you're reaching out to someone, when you're messaging somebody, what do you say, how do you say that, a lot of conversation around communication building and just being able to initiate that conversation in the first place. तो पूरा conversational flow हमारा होता है, उनके पूरी files देते हैं students को. So this is what we teach. एंड ये एक ऐसी अच्छी स्किल इसलिए है बिकॉज आई से दिस अलॉट कि ये एक ऐसी स्किल है जो कि विद जीरो एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, बिकॉज it's literally just a conversation that you have to do. It's not sales, it's not marketing, it's just like you trying to get to know someone, trying to ask them some questions. बिकॉज जितना हम इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे हमें लगेगा कि सेल्स है और इस तरह की चीज़ है तो वो ऑब्वियसली फिर आप घबराएंगे जो भी है, बट it's really not sales. So it's a step before sales, and anybody can do it अगर आप उनकी communication skills आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब basic English आपकी written spoken अच्छी होनी चाहिए. So ये हम require करते हैं कि इतना आपकी अच्छी हो skill कि आपको लिखना और बोलना आता हो, और बाकी जो उसकी technicalities होती हैं फिर वो हम सब चीज़ें सिखाते हैं. हम्म. ठीक है. सो अपॉइंटमेंट सेटिंग एंड मेटा एड सूट ये दोनों आपके एंड ऑफ जनवरी में दे आर गोइंग लाइव. आई वुड रीच आउट टू यू टू सेंड मी द डिटेल्स, तो हम इसी कॉन्वर्सेशन के नीचे उसको शेयर कर देंगे सो पीपल कैन रीच आउट टू यू फ्रॉम देयर. ठीक है. Last, I think the last question, and we are going to end on that note, is if you have one piece of advice to women who are either starting their career or restarting their career, what would that advice be? So starting or restarting the career, the only best advice that I can give them is कि there is no right or wrong time to do this. अगर आपको लगता है कि आपने जो है बहुत गैप, हमारे पास ऐसी स्टूडेंट्स भी आई थी जिनको 8-8 साल का 10-10 साल का गैप हो रहा है कोई भी पढ़ाई किए हुए, कोई भी चीज़ किए हुए, and all they need is that boost of confidence. So a lot of times it is not that fear, I mean of course a lot of times it's that fear factor उनके दिलों में ये होता है कि हम कैसे करेंगे दोबारा से, या दोबारा अगर हम करना चाह रहे हैं या स्टार्ट ही करना चाह रहे हैं, कभी हमने कुछ किया नहीं है तो how can we start, because they lack that confidence. And I would just say to them is कि talk to the right people, because that is a very important factor. आप किसी भी ऐसे इंसान से बात करें जो कि आपको सही मशवरा देगा, सही गाइडेंस देगा, और ऐसी कम्युनिटीज़ में रहें जैसे विमेन इन टेक है,
हमारी कम्युनिटी है सुपर विमेन, और इस तरह के ग्रुप्स में रहें जो जहाँ पे आपको राइट कॉन्वर्जेशन के अराउंड आपको आपको कुछ सीखने को मिले, और ऐसी एग्जाम्पल्स देखें जो कि आपकी जैसी लड़कियां हैं और जो काफ़ी कुछ कर रही हैं. And there is no skill that you cannot learn while sitting at home. I do not believe in that कि आपको बहुत कोई दूर जाना पड़ेगा घर से. ठीक है, कोई हम बहुत टेक्निकल चीज़ों की तो यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि आपको कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स उसके लिए सिस्टम्स चाहिए या जो भी है. These are skills that you can start earning as early as at least 2 महीने का टाइम अगर आपने मेहनत करके अपने आप ऊपर लगा दिया, 2 से 3 महीने का टाइम आपने अपने ऊपर मेहनत करके लगा दिया, तो आप जो हैं बहुत इजीली $500 to $1,000 आराम से घर से बैठ के कमा सकते हैं. दिस इज़ व्हाट Tuba and I did for a very long time, and this is what we want to teach. So as far as the money is concerned, money does come, and but you have to promise yourself that giving up is not an option. A lot of times girls reach out to us and say कि ओके सो हमारा हम आपका कोर्स ख़रीद रहे हैं कि हमें फ़ौरन जॉब मिल जाएगी. तो आई ऑलवेज स्टॉप देम राइट देयर एंड आई से कि नो, वी आर नॉट गिविंग यू, we will never give you any kind of guarantee for a job. All we can do is help build a reference or connect you with the right people. But job हासिल करना is going to depend on your skill set, योर कैपेबिलिटी. एंड जॉब तो आप करेंगी ना, मतलब हमें आप कोर्स के अगर पैसे आप दे भी नहीं है तो मतलब मैं क्या गारंटी दूंगी आपको अगर आपने जॉब पे परफॉर्म ही नहीं किया तो दैट्स ऑन यू, दैट्स नॉट ऑन अस. And this is what we try to preach as well, that it's always going to be on you. Like, we are enabling you, we are teaching you, but you are the one who has to take that first step. I also wanted to like quickly bring this factor as well कि हमारे जो courses हैं, they are very 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 low cost courses, so we're not charging a lot of money. And the reason why we've kept it this way is because a lot of audience has a hard time affordability factor, and हमने एक अच्छे एक्सटेंसिव कोर्स जो भी हमारे हैं बनाए हैं जिनको हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखा इस वजह से ही, ताकि वो एक्सेसिबल हो, ताकि लोगों के पास कोई बहाना ना हो बोलने का कि यार ये मसला है इस वजह से हम नहीं कर रहे. वी केप्ट इट एज सिंपल एज इट्स लाइक अ नो ब्रेनर काइंड ऑफ अ थिंग. तो व्हाट डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू दैट, एनी प्रैक्टिकल एडवाइस यू वांट टू गिव? मैं यहाँ पे ये एडवाइस ही ऐड करना चाहूंगी कि भाई कभी भी ये ना सोचें कि यू कांट डू एनीथिंग. मतलब खवातीन है ना सब, एक तो ये ना सोचें कि यू कांट डू एनीथिंग, और दूसरी चीज ये स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. आई नो कि बहुत कुछ होता है लाइफ में करने के लिए, बट जस्ट टेक आउट 15 मिनट से स्टार्ट करें, अपने ऊपर टाइम दें. आइदर वो स्किन केयर से स्टार्ट करें, आइदर वो रीड अ बुक, और जस्ट लर्निंग अ स्किल. स्टार्ट करना शुरू करें अपने आप से. जब आपको अपने अंदर चेंज महसूस होगा ना कि अब मैं बदल रही हूँ, तो आप आगे बढ़ेंगी. जस्ट ग्रो योर सेल्फ. ग्रोथ से फाइनेंशियली तौर पे नहीं होती है, ग्रोथ हर तरीके से होती है. आपकी थॉट प्रोसेस में ग्रोथ होती है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी में होती है, आप दुनिया को बेहतर तौर पे समझने लगते हैं, ये आपकी ग्रोथ होती है. जब आप इन चीजों में ग्रो करने लगेंगे ना, यू विल फाइंड पीस इन योर सेल्फ. आप बहुत ज्यादा पीसफुल महसूस करना शुरू होंगे. और ये बहुत जरूरत है हमारी खवातीन को इन चीजों की, कि वो अपने आप पे थोड़ा फोकस करें और अपना आप इतना पीसफुल बनाएं कि उनके लिए रहना और सरवाइव करना बहुत इजी हो जाए. हम बोलते हैं ना बड़ी मुश्किल में रह रहे हैं, मुश्किल में नहीं, हम बहुत अच्छी जिंदगी में रह रहे हैं. तो ये वाला माइंडसेट बनाना है. और जब ये बनने लगेगा तो फिर ये आगे की चीज जो है ना, कोई स्किल सीख के कमाना, कोई स्किल सीख के जो है अपनी बेहतर बनाना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये इतना मजा आएगा जब आपके हाथ में खुद से पैसे आना शुरू होते हैं अपने. सो वो जो ग्रोथ आप कर रहे हैं ना, वो डबल ट्रिपल होने लगती है. और दैट इज वो एंड ही नहीं होनी है वो चीज. सो ये आपको अपने लिए करना है, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना और स्किल सीखें. अभी मैं सुन रही थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की कोट थी कि जिस दिन आप लर्निंग करना छोड़ते हैं ना, उस दिन आप मरना शुरू हो जाते हैं. हम्म. व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग. तो लर्निंग करने से मत रुकें. वो कोई भी स्किल हो, लर्न करते रहें. किसी भी किस्म का स्किल हो, वो खाना पकाने का स्किल हो, वो बच्चों की परवरिश करने का स्किल हो, वो पेरेंटिंग का स्किल हो, जस्ट स्टार्ट लर्निंग. ठीक है, तो मैं यही सारी खवातीन को कहना चाहूंगी. फायजा आप म्यूट है मेरे ख्याल से. Thank you so much, Tuba. Thank you, Nida. It was wonderful talking to both of you.
If there are any resources, any links, anything you want me to add to this conversation, I'm happy to do that. It's live on the page. It's going to stay there. It's going to accumulate more viewers as the time go along. So keep an eye on that also. If there is any registration form for your courses, feel free to share it also. Happy to put it out. And thank you so much for your time, and sorry for the crazy internet. All connections are shaky right now. Not sure what is happening, but I'm really glad that we were able to do this. Thank you so much for your Thank you so much. time and your generosity for welcoming us to your community. I've been, I don't know what Tuba kab say, but I've been part of Women in Tech since it was very, very small. Like I think दो तीन हजार members थे, तो तब से मैं हूँ उस group में आपके, and I think the work is just absolutely amazing. And I always say this, it's never about a competition between these communities, because the more the merrier. इतनी खवातीन है पाकिस्तान में और दुनिया भर में, मतलब कोई तो 50,000 कम्युनिटीज भी हैं, दो भी मैं समझती हूँ कि वो कम है, बिकॉज काम बहुत ज़्यादा होना बाकी है और होना चाहिए. So thank you so much for everything that you do, and thank you for having us. Thank you, Faiza, for inviting us for this live. Thank you so much, both of you. Have a great week ahead. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Faiza. Take care. Allah Hafiz.